وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ میں بڑے مزے سے ساری رات آرام سے سویا رہا۔ صبح صادق آ گیا۔ اس وقت پاپ ہٹ رہی تھی۔ صادق کہنے لگا، اب تم یہاں سے نکل کر سیدھے لاری اڈے پہنچو، کوئی رکشہ تانگا لے لینا۔ اسے کہنا پرانے جموں ریلوے اسٹیشن کے سامنے جو لاری اڈا ہے وہاں لے چلے، وہاں سے سری نگر کو لاریاں جاتی ہیں۔ باقی میں نے کشمیری کمانڈو کی بابت تمہیں جو سمجھا دیا ہے اسے یاد رکھنا اور اسی کو جا کر رپورٹ کرنا۔ میں نے تمہیں جو خاص شعر یاد کرایا ہے، یہ شعر صرف کشمیری کمانڈو کو الگ جا کر سنا دینا اور کہنا کہ مجھے اس شعر کے شاعر نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ سمجھ جائے گا کہ تم کون ہو اور کس غرض سے اس کے پاس آئے ہو۔ باقی باتیں تم اس سے زبانی کر لینا۔ اب خاموشی سے دکان میں سے نکل جاؤ۔ میں منہ ہاتھ دھو کر پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ صادق سے مصافحہ کیا اور دکان سے باہر نکل کر بازار میں ایک طرف چلنے لگا۔ ابھی جموں شہر میں دن کی روشنی پوری طرح نہیں ہوئی تھی۔ دور سے کسی مندر کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک سائیکل رکشہ بھی مل گیا۔ میں اس میں بیٹھ کر جموں سری نگر لاری اڈے پر آ گیا۔ یہاں ایک لاری کافی دیر پہلے سری نگر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ دوسری لاری کے لیے ٹکٹ کھل گئے تھے۔ لاری اڈے کی اونچی چھت کے نیچے ادھر ادھر کچھ لوگ بیٹھے ناریل کا حقہ پی رہے تھے۔ کچھ سواریاں سو رہی تھی۔ میں نے سری نگر کا ٹکٹ خریدا اور ایک طرف خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ یہاں جموں آنے کے بعد پہلی دفعہ میں نے 2 فوجیوں کو دیکھا۔ وہ وردی میں تھے۔ وہ ٹکٹ والی کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے میرے قریب سے گزرے تو بلب کی روشنی میں نے ان کے کندھے پر جموں کشمیر رائفلز لکھا ہوا پڑھا۔ یہ دونوں ڈوگرا فوج کے جوان تھے۔ انہوں نے فوجی تھیلے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کی رائفلیں سلنگوں کے ساتھ کندھوں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ ان کی وردیاں گرم تھیں۔ ظاہر ہے وہ کشمیر کے محاذ پر جا رہے تھے جہاں یقیناً سردی پڑ رہی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا تھا اور خاموش بیٹھا مزے سے سگریٹ پی رہا تھا اور ماحول کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اتنے میں ایک خالی لاری آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کنڈکٹر نے بلند آواز سے کہا، سری نگر جانے والی سواریاں آ جائیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور لاری میں پچھلے دروازے کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس سیٹ کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر حالات کہیں نازک صورتحال اختیار کر جائیں تو میں لاری سے کود سکوں۔ دیکھتے دیکھتے لاری بھر گئی۔ جموں کشمیر رائفلز کے دونوں ڈوگرا فوجی بھی اسی لاری میں آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد لاری اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جموں شہر سے باہر نکلے تو سفیدہ صبح چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ راستے میں ایک بہت بڑے محل کی عمارت تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ جموں کے سابق راجا کا محل تھا۔ ایک جانب پہاڑی ڈھلان پر مکانات بنے ہوئے تھے جہاں ایک مندر کا کلش چمک رہا تھا۔ لاری جموں سری نگر روڈ پر دوڑی جا رہی تھی۔ لاری مسافروں سے بھر چکی تھی، اس لیے راستے میں کوئی سواری ہاتھ دیتی تو ڈرائیور گاڑی نہیں روکتا تھا۔ راستے میں سڑک کے کنارے جموں کی دیہاتی عورتیں سروں پر ٹوکرے یا خشک لکڑیوں کے گٹھے یا دودھ کے برتن رکھے شہر کی طرف جاتی نظر آئیں۔ ان عورتوں کا لباس ہندو عورتوں والا تھا۔ دور اوپر اونچی پہاڑی پر کسی مندر کا کلش طلوع ہوتے سورج کی سنہری کرنوں میں چمکتا نظر آیا تو لاری میں بیٹھے ہوئے ہندوؤں نے بلند آواز میں نعرہ لگایا، شیراں والی ماتا کی جے۔ معلوم ہوا کہ یہ جموں کا مشہور مندر شیراں والی ماتا کا مندر ہے۔ اب ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ کہیں چڑھائی آ جاتی، کہیں ڈھلان شروع ہو جاتی۔ پہاڑیوں پر جنگلی جھاڑیاں اور کافی درخت اگے ہوئے تھے۔ دھوپ نکل آئی تھی۔ کبھی کبھی ان پہاڑیوں کی طرف سے گرم ہوا کا جھونکا اور کبھی سرد ہوا کا جھونکا آ جاتا۔ آگے ایک پہاڑی قصبہ آیا جس کے آگے پہاڑی سرنگ میں لاری داخل ہو گئی۔ سرنگ کی دوسری جانب خشک اور چٹانوں جیسی پہاڑی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سڑک اب اونچائی پر جا رہی تھی۔ نیچے دور دریا سانپ کی طرح بل کھاتا نظر آ رہا تھا۔ لاری چٹانوں کے درمیان بنی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو پہاڑی جنگل کی سڑک پر چلتی رہی اور پھر ادھم پور آ گیا۔ یہ آرمی ہیڈ کوارٹر ہے اور جموں کشمیر کا سب سے بڑا ہوائی اڈا بھی ہے۔ فوجی چھاونی بھی یہیں پر ہے۔ دونوں ڈوگرا فوجی یہاں اتر گئے۔ ادھم پور کے آگے پھر چٹانی علاقہ آ گیا۔ یہاں جگہ جگہ کیکر کے درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ میں ان درختوں کو دور ہی سے پہچان گیا تھا۔ اس کے آگے سنوبر اور دیودار کے درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ سڑک کے کنارے کنارے دونوں جانب کہیں کہیں مکئی کے کھیت نظر آ جاتے۔ یہاں پہلی بار ہوا میں پہاڑوں والی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آخر 105 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ہماری لاری قد پہنچ کر رک گئی۔ قد ایک صحت افزا مقام ہے۔ یہاں چشمہ بہ رہا تھا۔ سب مسافر لاری سے اتر گئے۔ میں نے بھی اتر کر چشمے کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا۔ چشمے کے پانی کے 2-3 گھونٹ پیے۔
करीब ही खाने पीने और चाय की दुकानें थीं जिन्हें शुमाली भारत में ढाबे कहा जाता है। यहाँ मैंने लुधियाना जम्मू से निकलने के बाद पहली बार दुकानों पर उर्दू में लिखे हुए 2-4 बोर्ड देखे। साफ मालूम हो रहा था कि मुसलमानों की अक्सरियत के आबादी वाले इलाके शुरू हो गए हैं। लारी कद से रवाना हुई तो रामबन जाकर रुकी। रामबन दरियाए चनाब के किनारे पर आबाद है। हर तरफ धोतियों वाले हिंदू नजर आ रहे थे। कहीं कहीं मुसलमान भी लंबे करन पहने नजर आ जाते, मगर रामबन में हिंदू ज्यादा आबाद थे। लारी यहाँ से फिर आगे रवाना हो गई। इस दौरान किसी मुसाफिर के साथ मेरी ज्यादा बोलचाल इसलिए न हो सकी कि अक्सर मुसाफिर उतरते चढ़ते रहते। लारी में अभी तक मेरे लिए कोई तशवीश की बात पैदा नहीं हुई थी। रास्ते में एक जगह 2-3 पुलिस के सिपाही भी लारी में सवार हुए, मगर किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न की। वो आगे जाकर उतर गए। पत्नी टॉप एक मकाम आया। यहाँ पहाड़ियों की ढलानों पर देवदार के बेशुमार दरख्त थे। यहाँ मालूम हुआ कि कश्मीर का इलाका शुरू हो रहा है। यहाँ खुनकी बढ़ गई थी। चुनाचे मैंने अपनी नायलॉन की जैकेट के बटन बंद कर लिए। यहाँ मैंने ढाबे में बैठकर खाना खाया। आसमान पर बादल छा रहे थे। ये बादल देवदार के दरख्तों में से होकर गुजरते थे। यहाँ पीने का पानी बड़ा ठंडा था। उसके बाद एक और शहर आया। ये जगह भी काफी ठंडक वाली थी। लगता था कोहे मरी में आ गया हूँ। यहाँ दुकानों और मकानों पर उर्दू में लिखे हुए बोर्ड ज्यादा थे। यहाँ से मुसलमानों की अक्सरियत शुरू हो गई थी। कश्मीर की वादी तक अभी लारी ने आधा सफर तय किया था। रात के 9 बजे के करीब लारी बानिहाल पहुंचकर ठहर गई। ड्राइवर ने ऐलान किया कि रात बानिहाल में ठहरेंगे। लारी सुबह श्रीनगर रवाना होगी। यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लारी के अड्डे में एक लंबा हॉल कमरा था जहाँ मुसाफिरों ने अपने बिस्तर लगा लिए। मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था। मुझे बिस्तर की जरूरत भी नहीं थी। मैं कोने वाले एक बेंच पर सिमट सिमटा कर पड़ गया। सर्दी जरूर महसूस हो रही थी, मगर मेरा जिस्म कमांडो ट्रेनिंग ने सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने का आदी बना दिया था। मैंने वहीं रात गुजार दी। दूसरे दिन सुबह 6 बजे लारी श्रीनगर के लिए चली। बानाल की बड़ी लंबी सुरंग भी आकर गुजर गई। फिर काजी कुंड का कस्बा आया। यहाँ कश्मीर का कल्चर साफ तौर पर नजर आने लगा। जगह जगह मस्जिदें थीं। कश्मीरी खवातीन सर पर दुपट्टा बांधे फरन पहने बाजार में आ जा रही थीं। कश्मीरी जवान और बूढ़े लंबे लंबे फरगल पहने हुए थे। पामपुर के आसपास जाफरान के दरख्त भी थे। अब हम कश्मीर की वादी में दाखिल हो चुके थे। श्रीनगर कोई 50-60 मील दूर रह गया था कि एक जगह सड़क पर डोगरा फौजी खड़े थे। उन्होंने लारी रुकवा ली। मैं होशियार बैठ गया और फौजी लारी के पास आए। उन्होंने सारे मुसाफिरों को बड़े गौर से देखा, फिर लारी को चेक किया। लारी के ऊपर छत पर चढ़कर सामान को उलट पलट कर देखा और लारी को आगे जाने की इजाजत दे दी। 1 घंटे के सफर के बाद डोगरा छावनी के गेट के आगे लारी रुक गई। यहाँ भी डोगरा फौज के सिपाहियों ने, जिनमें एक सिख भी था, लारी की चेकिंग की। जब उनकी तसल्ली हो गई तो उन्होंने लारी को आगे जाने की इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद लारी श्रीनगर में दाखिल हो गई। मैंने कश्मीरी मुजाहिदीन का ये शहर पहले कभी नहीं देखा था। अखबारों में इस शहर के बाजारों, मस्जिदों और निशात बाग की तस्वीरें ही देखी थी। मौसम यहाँ सर्दियों का था। हवा ठंडी थी। आसमान पर बादल नहीं थे। सर्द हवा चल रही थी। लारी अड्डे में जाकर खड़ी हो गई। मैं अड्डे से निकलकर सीधा दरियाई जेहलम की तरफ चल पड़ा। मैंने रास्ते में देख लिया था, हमारी लारी उसके एक पुल पर से गुजरी थी। मैंने किसी से न पूछा और खुद ही अंदाजे से दरिया के एक पुल पर पहुंचकर उसे पार किया। दूसरी जानिब बाजार था। बाजारों में पुलिस और डोगरा फौज के सिपाही फिर रहे थे। कश्मीरी जवानों के चेहरों के नाकाबिल शिकस्त अज़्म की चमक थी। यहाँ सारा माहौल इस्लामी था। मस्जिदें जगह जगह थीं, खानकाहें थीं। दुकानों पर कहीं कोई हिंदी का बोर्ड नजर आ जाता। सब बोर्ड उर्दू और अंग्रेजी जबानों में लिखे हुए थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। पाकिस्तान से निकलने के बाद पहली बार मैंने पाकिस्तानी खाना यानी पुलाव रोगन जोश के साथ खाया। कोई कश्मीरी जबान में बात कर रहा था। उर्दू जबान भी आम बोली जाती थी। रेस्टोरेंट में कायदे आजम की तस्वीर लगी हुई थी। देखकर सर फखर से बुलंद हो गया। कई दुकानों के ऊपर पाकिस्तानी परचम भी लहरा रहे थे। यहाँ से मुझे अपने कश्मीरी मुजाहिद कमांडो की तलाश में शुमाल की जानिब जो पहाड़ियाँ थीं उस तरफ जाना था। मैं अंदाजा लगाकर शहर के शुमाल की तरफ बाजारों में चलता गया। काफी देर तक चलने के बाद मैं शहर से बाहर आ गया। शहर के दोनों जानिब चनार और सफेदे के ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। हरे भरे दरख्त थे। सेब के दरख्त भी देखे। कश्मीरी किसान, मर्द औरतें खेतों में काम कर रही थीं।
कश्मीरी किसानों की हालत इंतहाई फलाकत ज़दा थी। हिंदू हुक्मरानों ने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा करके यहाँ के हकीकी कश्मीरी मुसलमानों की माशी जिंदगी को कुचल कर रख दिया था। कश्मीर की सारी दौलत हिंदू गासिब समेट रहा था और कश्मीरी मुसलमान जो कश्मीर के मालिक थे गरीबाना जिंदगी बसर कर रहे थे। मैंने दूर शुमाल की जानिब पहाड़ों पर निगाह डाली। जम्मू वाले हमारे आदमी यानी दुकानदार सादिक ने यहाँ मुझे पहाड़ियों की एक खास निशानी बताई थी। मैंने उस निशानी को दो पहाड़ों के दरमियान एक जगह देखा तो उसी तरफ रवाना हो गया। मैं उस शेर को दिल ही दिल में बार बार दोहरा रहा था जो मुझे कश्मीरी कमांडो शेरवान के आगे जाकर सुनाना था और जो इस बात का खुफिया इशारा था कि मैं कमाल शाह का तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ और जिहाद कश्मीर में शरीक होने आया हूँ। मुझे कश्मीरी कमांडो शेरवान को ये खास शेर सुनाने के बाद जो उर्दू का शेर था ये भी कहना था कि मुझे इस शेर के शायर ने आपके पास भेजा है। आसमान पर बादल बराबर छाए हुए थे, सर्द हवा चल रही थी। मैं खेतों के दरमियान से होकर गुजर रहा था। किसी खेत में हल चला हुआ था, किसी खेत में फसल लहरा रही थी। चलने से मुझे सर्दी नहीं लगती थी, जिस्म गर्म हो गया था। पहाड़ अभी दूर थे। कोई 2-2.5 घंटे चलने के बाद भी पहाड़ों की उतराई में यानी उनके दामन में पहुंच गया। रास्ते में 1-2 लकड़ी के छोटे छोटे बोसीदा मकान वाले गांव भी आए। यहाँ कश्मीरी औरतें कहीं धान कूट रही थीं, कहीं लकड़ियां काट रही थीं। पहाड़ी इलाका शुरू हुआ तो जंगली झाड़ियां भी शुरू हो गईं। आखिर में पहाड़ के दामन में उस जगह आ गया जहाँ 2 पहाड़ियों के दरमियान एक तंग रास्ता दूसरी तरफ जा रहा था। यहाँ वो दर्रा था जिसके बारे में जम्मू वाले सादिक ने मुझे बताया था। 2 पहाड़ों के दरमियान उस तंग से रास्ते में जंगली झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। मेरे लिए उनमें से गुजरना कोई मुश्किल न था। अगरचे मेरे पास कमांडो चाकू तो नहीं था, मगर एक तरबियत याफ्ता कमांडो के फौलादी हाथ पांव इन झाड़ियों को तोड़ने के लिए काफी होते हैं। मैं हाथों से झाड़ियों को तोड़ता हुआ और इधर उधर हटाता रास्ता बनाता दर्रे में से गुजर गया। आगे एक खुली जगह थी जहाँ छोटे छोटे दरख्त और घास थी। कुछ फासले पर पहाड़ियां थी जिनकी ढलानों पर चढ़कर दरख्त ऊपर तक उगे हुए थे। उनके ऊपर बादल ही बादल थे। जैसे ही दिन ढल रहा था सर्दी बढ़ रही थी। मुझे इन पहाड़ियों के दरमियान में से गुजरकर आगे जाना था। वही मंजिल थी। मैं चलता चलता इन पहाड़ियों के पास आ गया। यहाँ भी पहाड़ियों के दरमियान तंग रास्ता बना हुआ था। ये एक गली सी थी जिसमें ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। यहाँ से गुजरते हुए मुझे आधा घंटा लग गया। मैं दर्रे से बाहर निकला तो सामने देवदार और चनार के दरख्तों का एक घना पहाड़ी जंगल और बेहद नशेबो फराज थे। कहीं जमीन एकदम नशेब में उतर जाती, कहीं अचानक ऊंचाई शुरू हो जाती। ये कुदरती जंगल था। कहीं कोई पगडंडी तक नहीं थी। लगता था कि यहाँ से इंसानों का गुजर नहीं होता। आसपास कोई आबादी नहीं थी। मैं एक पहाड़ी पर पहुंचकर रुक गया। करीब ही एक चश्मा था। चश्मे का पानी एक टीले की झाड़ियों में से नीचे छोटे से नाले में से गिर रहा था। मैंने जहाँ मुंह हाथ धोया, पानी पीकर प्यास बुझाई। वाकई कश्मीरी चश्मों का पानी आबे हयात था। इतनी देर में सूरज मगरबी पहाड़ियों के पीछे छुप गया था, जिसकी वजह से मेरी तरफ की ढलानों पर एकदम गहरी छांव और अंधेरा सा छाने लगा था। मुझे ख्याल आया कि अंधेरा होने से पहले पहले मुझे कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान के ठिकाने तक पहुंच जाना चाहिए। जम्मू वाले सादिक ने मुझे यहाँ जो खास निशानी बताई थी वो मुझे रात के अंधेरे में नजर नहीं आ सकती थी। ये एक खास निशानी थी। मैं उठकर एक तरफ चल पड़ा। चंद कदम चलने के बाद पहाड़ी शगाफ नजर आए। यहाँ एक जानिब खड़े होकर मैंने सादिक भाई की हिदायत के मुताबिक बिल्कुल सीध में देखा। एक जगह मैंने 2 दरख्तों की खास निशानी देख ली। ये दरख्त अंग्रेजी का एक लफ्ज बनाए हुए एक जानिब झुके हुए थे। मुझे उन दरख्तों के पास पहुंचना था। मैं आगे चल पड़ा। जब इन दरख्तों के करीब पहुंचा तो अचानक मेरी दोनों जानिब से 3 आदमी निकलकर मेरे सामने आ गए। उन्होंने स्याह रुमाल मुंह पर और सर पर इस तरह बांधे हुए थे कि मुझे सिर्फ उनकी चमकती हुई आंखें ही नजर आ रही थी। उनमें से हर एक के हाथ में स्टेन गन थी। वो नीम कमांडो के लिबास में थे। 2 जवानों ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया। तीसरे ने उर्दू जबान में मुझसे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए हो? इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब दूं, उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांधकर मुझे सर से दबाते हुए नीचे बिठाया और कश्मीरी जबान में एक दूसरे से कोई बात की। उनमें से एक ने स्टेन गन का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैंने कहा, भाइयों मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपने लीडर के पास ले चलो, मुझे कमाल शाह ने भेजा है। कमाल शाह का नाम सुनकर वो ठिठक गए। उन्होंने कोई जवाब न दिया। फौरन एक मुजाहिद ने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी और मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले जाने लगा। कई ऊंची नीची जगहों से गुजरकर मुझे ऐसा लगा कि मैं झाड़ियों की तरफ आ गया हूँ। मेरे सर पर हाथ रखकर एक बार फिर मुझे बिठा दिया गया। उन्होंने आपस में कश्मीरी जबान में कोई बातचीत की। एक मुजाहिद ने मुझसे उर्दू में कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा, पाकिस्तान से जिहाद कश्मीर में शामिल होने का जज्बा लेकर आया हूँ।
वो मेरी तलाशी लेने लगे। मेरी जेब से स्प्रो टैबलेट बम वाला प्लास्टिक का लिफाफा और सीक्रेट एजेंसी का कार्ड निकला तो उन्होंने मुझसे पूछा ये कार्ड पर किसका नंबर लिखा है। मैंने कहा भाई ये कार्ड कमांडो मुजाहिद कमाल शाह साहब ने मुझे दिया है कि इसे कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान को पहुंचा दूं और बाकी सरदर्द की गोलियां हैं। यहाँ तो मैंने कश्मीरी कमांडो लीडर का नाम शेरवान ही बताया है, उनके आगे मैंने उसका असल नाम लिया था। मगर यहाँ मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे एक कमांडो की हैसियत से अपना तारुफ नहीं करवाना चाहिए था। मैंने उन लोगों की शनाख्त मालूम किए बगैर बता दिया था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और कमाल शाह ने मुझे भेजा है। वो लोग इंडियन फौज के कमांडो भी हो सकते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।